Good morning, everyone. Welcome to the Operation Research lecture. Today, we are going to study and understand and introduce the topic critical path method, that is CPM. We are starting with module number 3, network analysis, and the first chapter in the module number 3 is chapter 7, critical path method. So, in this method, we have an introduction, an objective of network analysis, basic concepts of network analysis, rules of network constructions, construction of network diagram, and we will consider some examples also. And then what is dummy activity, constructions of dummy activity, how to construct a dummy activity, and common errors in network diagram, determination of critical path, times estimates in network analysis, and then critical path method, and then we have some solved examples. So this is all about the critical path method chapter. So in this way, we are going to complete this chapter. So what is critical path method? Basically, network analysis involves scheduling and planning the best possible sequence of activities in the project. A project may be as small as to arrange a birthday party or as big as to build up a shopping mall. Every project, small, big, involves various tasks to be completed. The tasks are termed as activities. These activities can be performed independently or in a sequence that is linked with the completion of other activities. Suppose we consider a small project of birthday party, the activity may be listed down to prepare a logical sequence of the activity so that the project can be completed within a specified duration of time with minimum wastage of time desired. The logical sequence of the activities is called a network diagram. The network diagram can be constructed through the series of arrows and nodes conveniently expressing the sequential nature of the project. So basically, any activity which is termed as a project has some network. ठीक है, समझिए अगर हम लोग को आपके लेक्चर्स लेने हैं ऑनलाइन, सो वी डू हैव नेटवर्क. द फर्स्ट थिंग इज शेयर द मीटिंग लिंक्स और the online connection links, whether it is on Zoom, on Gmeet, that is Google Meet, or maybe on Facebook, maybe directly on YouTube. It depends which platform you select, राइट. बट उसका लिंक सबसे पहले आपको वेल इन एडवांस पहुंचना चाहिए या फिर ऑन टाइम पहुंचना चाहिए, तो उसके अरेंजमेंट्स हमको करने हैं. देन सेकंड एक्टिविटी इज making notes, whether you are clicking the image and converting it into PDFs, or you are searching notes online, or you are making presentations, or you are finding presentations, whatever it is, that is an another activity. And then third activity is to check whether everything is done or not. And at the end, हम end result क्या देने वाले हैं, this is our network और path network. So एक एक activity जब connect करते हैं, then it becomes a network analysis or something, a network or a project network. यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में दो एग्जाम्पल दिया है, एक बर्थडे पार्टी के बारे में बताया, एक शॉपिंग मॉल्स के बारे में बताया. नाउ दे सेज दैट एवरी स्मॉल बिग प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स वेरियस टास्क टू बी कंप्लीटेड, राइट. अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं तो आपको भी बहुत सारे एक्टिविटीज कंसिडर करने पड़ते हैं. आपको 10 बार आपके इंटरनेट या फिर जो डेटा प्रोवाइडर है वो चेक करना पड़ता है वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. देन उसके बाद हमारा जो डिवाइस है वो चार्ज है या नहीं है, चार्ज करने के लिए मुझे कभी फोन चार्जिंग पे रखना पड़ेगा एंड ऑल. सो एवरी प्रोजेक्ट, वेदर इट इज अ स्मॉल, वेदर इट इज अ बिग, हैज सम टास्क. ठीक है. तो बर्थडे का जब प्लान करते हैं तो किसका बर्थडे है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग आगे का प्रोसीजर करते हैं. अगर क्लासमेट का बर्थडे एंड वेरी ही और शी इज वेरी मच क्लोजर, तो कितना भी बड़ा लॉकडाउन हो हम कैसे न कैसे सेलिब्रेट करेंगे. बट हाई एंड हेलो वाला फ्रेंड रहेगा तो हम लोग सिर्फ उनको व्हाट्सएप मैसेज, स्टेटस, स्टोरीज ये करके हम लोग खत्म कर देते हैं, राइट. सो एक्टिविटी कैसा, प्रोजेक्ट कैसा भी हो, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं. ठीक है. सो जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, जहाँ पे हमारा जो वेस्टेज है मिनिमम से मिनिमम हो, मतलब हमारा टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो और हम प्रोडक्टिव काम भी करें. ठीक है. और ये जब हम लोग लॉजिकली जब इनको सीक्वेंसिंग करते हैं तो इसे हम नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं. सो जब हम लॉजिकली प्लान करके चलते हैं, ठीक है. अब लॉकडाउन अनाउंस्ड है, सेक्शन 144 लागू है, बट स्टिल उसमें हम लोग किसी के घर पे मिलना है जो 4-5 बिल्डिंग छोड़ के हम लोग रहते हैं.
या फिर समझिए एक 500 मीटर के रेडियस में हम लोग रहते हैं, वॉकेबल डिस्टेंस में हम लोग रहते हैं, सो वी कैन मीट एट समवन्स प्लेस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लान करते हैं कितने बजे आना है। शॉप्स जो है हमारे 8 to 11 या 8 to 10 ऐसे खुले हैं, तो केक कौन लेकर आएगा, किसके पास एक्सेसिबिलिटी है केक्स के लिए। देन स्नैक्स कौन लेकर आएगा, अगर कुछ घर पे ही बना के खाना है तो वो कौन काम करेगा, उसकी अरेंजमेंट्स कौन करेंगे। सो व्हाट यू डू इज यू क्रिएट एन एक्टिविटी एंड देन यू असाइन वर्क्स टू ईच एंड एवरीवन। जैसे हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में काम असाइन करते थे, वैसे हम लोग यहाँ पे भी असाइनमेंट का प्रॉब्लम करेंगे, एंड देन हर एक एक्टिविटी को सीक्वेंस के तौर पे उसको अरेंज करेंगे। किसी को अगर सरप्राइज देना है तो फर्स्ट थिंग इज पहले उनकी एंट्री, उनको सरप्राइज करो। सो वॉट एवर इट इज, जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में होता है, and इस लॉजिकल सीक्वेंस के एक्टिविटीज को हम बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, और ये सीरीज ऑफ एरोस के थ्रू जब हम लोग ऑपरेशन रिसर्च करते हैं तो सीरीज ऑफ एरोस के साथ वो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं और उनको एक नॉड देते हैं। ठीक है, आगे पता चलेगा कि ये एरोज एंड नॉड्स क्या है। सो नेटवर्क एनालिसिस इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग टू assumptions। अब नेटवर्क एनालिसिस के दो assumptions है। सबसे पहले, एवरी एक्टिविटी में हैव अ फिक्स्ड और वेरिएबल कंप्लीशन टाइम। हर एक एक्टिविटी का, हर एक काम का एक फिक्स या फिर एक वेरिएबल कंप्लीशन टाइम है। जैसे कि हमारे लेक्चर्स के कंप्लीशन टाइम क्या है, मिनिमम 30 मिनट्स एंड मैक्सिमम 40 मिनट्स, बिकॉज हम जूम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 40 मिनट्स में भी हम लोग कैसे टाइम एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हमारे वो कैसे कंप्लीट कर रहे हैं वो हम लोग डिसाइड करते हैं। सो एवरी एक्टिविटी हैज अ फिक्स्ड और वेरिएबल कंप्लीशन टाइम। वेरिएबल क्यों बोला है, बिकॉज समझिए एक कोई काम है जो अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है तो उसको 10 मिनट बाद हम लोग कर सकते हैं, बट उसका एक कंप्लीशन टाइम है। ठीक है, सो हम लोग ग्रेस पीरियड बोलते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। हाफ एन आवर का काम अगर 40 मिनट्स में हो रहा है, बट देन टू वी हैव सर्टन टाइम, एक पर्टिकुलर फिक्स या वेरिएबल टाइम है कंप्लीशन टाइम। ऐसा नहीं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, देन the total duration of the project may be reduced to certain extent by allocating some extra amount toward the completion। तो ये जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है वो रिड्यूस करते हैं, कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट बाय एलोकेटिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट टुवर्ड्स द कंप्लीशन। हम कंप्लीशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम एलोकेट करके जो लॉन्गेटिविटी है, उसका जो स्प्रेड है उसको कम करके, समझिए एक काम एक साल में होने वाला है, उसमें हम लोग और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके उसको 10 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, 8 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंड्स। ठीक है, सो हम लोग ये जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है वो सर्टन एक्सटेंट तक हम लोग एक्स्ट्रा काम एलोकेट करके वो कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू टेक्निक्स टू स्टडी द नेटवर्क एनालिसिस। जब भी हम नेटवर्क एनालिसिस पढ़ते हैं या फिर नेटवर्क एनालिसिस करते हैं तो वी हैव टू टेक्निक्स। नंबर वन इज PERT and then second one is CPM. Now what is PERT? PRT states program evaluation and review technique. So P for program, E for evaluation, and R for review, and T for technique, right? It assumes that the activity duration is not fixed and it follows a certain probability distribution. The technique of PRT was developed by US Navy in 1958 for the Polaris missile program. If you know about the Polaris missile program, तो उस समय यूएस नेवी ने ये पर्ट प्रोग्राम को या टेक्निक को डेवलप किया। नाउ ये टेक्निक क्या कहता है, ये एज्यूम करता है कि देर इज नॉट फिक्स्ड ड्यूरेशन और कंप्लीशन टाइम। क्यों? बिकॉज ये एक मिशन मिसाइल प्रोग्राम के लिए उन्होंने चालू किया था एंड प्रोबेबिलिटी है इसका। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि इसी पर्टिकुलर टाइम में वो कंप्लीट होगा। सो एक सर्टन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस तरीके से हम लोग को ये पर्ट का टेक्निक जो है इस्तेमाल करना है। व्हेन वी कम टू CPM, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड, it assumes that an activity can be completed within the specified time. This technique was developed by E.I. DuPont de Nemours and Company, 1957, for construction of new chemical plant and maintenance shutdown. अब देखिए दोनों का जो ओकेशन है उस हिसाब से ये मेथड बनाया गया है। पोलारिस मिसाइल प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है मिसाइल का।
दे डोंट हैव एनी आइडिया कि ये कब खत्म होगा प्रोग्राम, या फिर ये जो मिसाइल पोलारिस हमने लिया है, पोलारिस मिसाइल प्रोग्राम, इसका एंड डेट क्या है, कब हम ये प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया। प्रोबेबिलिटी मतलब एक अंदाज लगाना, फोरकास्ट देना कि सो एंड सो डेट तक शायद हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये केमिकल प्लांट एंड मेंटेनेंस शटडाउन देखते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू केमिकल प्लांट एंड मेंटेनेंस शटडाउन, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी नो कि हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, एक नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। वी नो कि अगर इनका बेस 1 महीने में 2 महीने में तैयार हो रहा है, स्लैब वन 1 महीने में तैयार हो रहा है, तो पूरी बिल्डिंग जो या फिर पूरा प्लांट इन्होंने आइडिया दिया है, वो कंप्लीट होने तक हमें पता है कि कितना टाइम लगेगा, राइट। सो अकॉर्डिंगली क्रिटिकल पाथ मेथड एज्यूम करता है कि एनी एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। सो कोई भी स्पेसिफाइड टाइम में हम लोग कर सकते हैं। सिंपल सीपीएम के लिए आप अपने कंस्ट्रक्शन या फिर रियल एस्टेट का एग्जांपल ले लो। आप अगर अपने फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं भी रियल एस्टेट या घर लेने के लिए इंक्वायरी आपने किया होगा किसी बिल्डर्स के ऑफिस में, और न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिजनेस है या इन प्रोसेस बिजनेस है वो, तो वो अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को बोलते हैं कि सर 2 साल में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा। Why they say? Because they use the critical path method, because उनको पता है कि certain टाइम तक, एक स्पेसिफिक टाइम तक हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। बट वो स्पेसिफिक टाइम में भी वो क्या करते हैं, हमें 6 महीने का ग्रेस पीरियड ऐड करके देते हैं। क्यों 6 महीने का देते हैं? बिकॉज अनसर्टेनिटी है, ठीक है। सो अनसर्टेनिटी में हमें ध्यान देना है कि हम एक्स्ट्रा टाइम बता के चले, ठीक है। सो ये दो तरीके के हिसाब से, दो सिचुएशन के हिसाब से उनके जो टेक्निक है वो डेवलप हुए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीआरटी एंड सीपीएम। ये दोनों जो टेक्निक्स है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम आंसर कर सकते हैं। सो पीआरटी सीपीएम टेक्निक्स कैन आंसर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पीआरटी और सीपीएम जो है फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हैं। वो क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें ये पहचानना है कि ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाउ लॉन्ग विल द एंटायर प्रोजेक्ट टेक टू बी कंप्लीटेड, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व। समझिए, अगर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमें प्लान करना है, या फिर वैक्सीनेशन का जो प्रोजेक्ट है हमने लिया है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भी एक एक्टिविटी है। तो हम लोग यहाँ पे सीपीएम टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पीआरटी, बिकॉज इट इज अ मिशन, ठीक है। तो पीआरटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इस पीआरटी के इस्तेमाल से वो हमें पता चलेगा कि जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है पूरे इंडिया में, वो कब तक कंप्लीट होगा और कितना टाइम लेगा, और इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, right? Then, which are the critical activities or tasks in the project which could delay the entire project if they were not completed on time? तो ऐसे कौन से क्रिटिकल एक्टिविटीज है या जो टास्क है जो कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इन क्रिटिकल एक्टिविटीज और टास्क की वजह से प्रोजेक्ट जो है डिले हो सकता है और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो। ऐसे कौन से क्रिटिकल एक्टिविटीज है? अब क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने कोई एक गेस्ट लेक्चर अरेंज किया है, ठीक है, आपने, आपके कॉलेज ने एक्चुअली अरेंज किया है, एंड स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब इसमें क्रिटिकल चीज क्या है पता है क्या? गेस्ट लेक्चर जो आने वाला है उनका ट्रांसपोर्टेशन आपको देखना है, ठीक है। तो आप में से किसी एक स्टूडेंट ने बोला कि हमारे पास कार है, मैं जाके ड्राइव करके लेकर आता हूँ, ठीक है। बट वो जो स्टूडेंट है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। नाउ हियर द क्रूशियल थिंग इज दैट जो गेस्ट स्पीकर है वो आने से मना करते हैं। ही डोंट वांट टू कम इन अ कार विद अ ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस नहीं है। लीगली ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू ड्राइव पर्टिकुलर फोर व्हीलर। नाउ दैट इज अ वेरी क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिटिकल सिचुएशन। अब वहां पे आप सडनली ओला नहीं कर सकते, बिकॉज आपके जो फ्रेंड ने लेकर गया कार, वो कार वहां से छोड़ के गेस्ट को ओला के साथ एस्कॉर्ट करे, या फिर गेस्ट को बोले कि सर आप अकेले इसमें जाओ और आओ। सो इट इज डिसरेस्पेक्टफुल। और एक इन शॉर्ट बेसिकली ऐसा है कि यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर गेस्ट स्पीकर रेस्पेक्टिवली। सो दैट इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी, और जिसके वजह से गेस्ट स्पीकर बोल सकते हैं या फिर वो डायरेक्टली
मैनेजमेंट से बात करके उस पर्टिकुलर इवेंट में आने के लिए मना कर सकते हैं। सो आपका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वन क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल, बिहाइंड शेड्यूल और अहेड शेड्यूल? सीपीएम और पीआरटी हमें ये बताते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जैक्टली पैरेलल टू द शेड्यूल चल रहा है, शेड्यूल से पीछे है, बिहाइंड द शेड्यूल है और अहेड ऑफ शेड्यूल है। मतलब आपने जो प्लान किया वो बरोबर एज पर प्लानिंग चल रहा है, प्लानिंग से आप 2 कदम आगे हो। ठीक है। आपने बोला कि 24 अप्रैल को हमारा जो काम है वो 70% होना चाहिए, बट 24 अप्रैल को आपका जो काम है वो 80% है, तो यू आर अहेड ऑफ योर शेड्यूल। ठीक है। लेकिन 24 अप्रैल को आपने 70% डिसाइड किया एंड देन आपका जो एक्चुअल प्लान एग्जीक्यूट हुआ है वो 50% हुआ है, दैट इज बिहाइंड शेड्यूल। ठीक है। सो पीआरटी एंड सीपीएम हमें ये बताता है कि हम शेड्यूल के साथ है या फिर बिहाइंड द शेड्यूल है या फिर अहेड ऑफ शेड्यूल है। ठीक है। इफ द प्रोजेक्ट हैज टू बी फिनिश्ड अर्लियर देन प्लान्ड, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दिस एट लीस्ट कॉस्ट? अगर प्रोजेक्ट जो है अर्लियर प्लान से पहले फिनिश्ड होता है तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है, और वो भी कम कॉस्ट में? अगर आपको कोई प्रोजेक्ट प्लान से पहले फिनिश करना है लेकिन आपको कॉस्ट भी उससे उसमें कम से कम ऐड करना है, तो बेस्ट वे क्या है, बेस्ट ऑप्शंस क्या है, वो आपको पीआरटी एंड सीपीएम आंसर दे सकते हैं। राइट। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर हमें मिलता है, एंड हमारे लिए कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही वैलिड एंड बहुत ही वाइटल माने जाते हैं। Now, next thing in our chapter is objectives of network analysis. Network analysis means constructing a network diagram that consists of all activities and events of a project which represents their interrelationship. हमारे जो project है उसके interrelationships को present करता है। So क्या objective है हमारे network analysis के? Number one, to establish a relationship between various activities in a project. एक प्रोजेक्ट में अलग अलग एक्टिविटीज के रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करना। सेकंड, मिनिमाइज द प्रोजेक्ट कॉस्ट को मिनिमाइज करना। देन टू मिनिमाइज द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को मिनिमाइज करना। एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, हमारा जो ह्यूमन है और अदर रिसोर्सेस है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, जितना मैक्स टू मैक्स यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं वो करके लेना। देन टू इंश्योर मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट एंड अननेसेसरी डिलेज, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रोजेक्ट में वो कम से कम हो, ऐसे नहीं कि पूरा रिमूव हो सकता है, बट कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सो मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स होने चाहिए और अननेसेसरी डिलेस को हमें अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड करें या फिर कम से कम डिले हो। ठीक है। अब हमने सोचा है कि वैक्सीनेशन जो ड्राइव है 2022 में मार्च या अप्रैल तक खत्म हो। चलो वो अप्रैल तक खत्म नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट अक्टूबर तक तो खत्म हो जाए, इतना डिले चलेगा, बट देन अगेन पूरा 1 साल लग रहा है, दैट्स नॉट वैलिड और दैट इज नॉट फीजिबल फॉर अस। राइट। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है जिसके वजह से हम नेटवर्क एनालिसिस करते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव लेकर ही हमारा जो नेटवर्क एनालिसिस में पीआरटी और सीपीएम है वो हमें बहुत ही हेल्पफुल करता है हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। और कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है। सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, सबसे पहले एक्टिविटी मतलब क्या है उन्होंने बताया। सो एन एक्टिविटी इज अ टास्क शेड्यूल्ड टू बी completed within a specific or expected duration of time. If network, an activity is represented by an arrow. ठीक है। सो एक्टिविटी इज नथिंग बट अ टास्क शेड्यूल्ड टू बी completed within a specific time. तो जब भी आपको ऐसे एरोज दिखेंगे दैट मीन्स दैट इज एन एक्टिविटी, ए एक्टिविटी एंड 7 उसका कॉस्ट है। इट मीन्स दैट एक्टिविटी ए टेक्स 7 hours, minutes, days और मे बी 7 rupees एक्सेट्रा। वो नंबर को आप क्या नोट करते हो, क्या डिनोट करते हो, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है। देन इवेंट मतलब क्या? इवेंट रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी।
The two ends of the activity are referred to as start, that is head, and end, that is tail node, always denoted by the numbers in a logical order. So here I is a start node and J is an end node and A is an activity. ठीक है. So event क्या है? I J, because start हो रहा है I से, complete हो रहा है J से, और उस event में activity कौन सा है आपका? A है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है, जो शादी के पार्टीज के ऑर्डर्स होते हैं वहां पे वो एज एन कोई मैनेजर बन के जाता है, कोई सर्विस देने के लिए जाता है, कोई शेफ बन के जाता है, कोई डीजे के लिए जाता है. सो इट डिपेंड्स. सो एवरीवन सेज कि सर कल एक पार्टी है या इवेंट है. Whenever they say कल पार्टी है या इवेंट है, then we ask again कि what's your role in that event or party. Then that person says कि म्यूजिक सिस्टम चेक करना, डीजे प्ले करना, या फिर ब्राइडल एंड ग्रूम के जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करना ऑन टाइम, या फिर किचन साइड संभालना, या फिर फ्रंट डेस्क पब्लिक रिलेशंस देखना. So these are activities in their particular events. Then a project. What is project? A project is a group of activities arranged in a logical sequence or order. ठीक है. So एक project का मतलब क्या है? Group of activities arranged in a logical sequence order. तो उसमें event भी ऐड होते हैं. ठीक है, उसमें एक्टिविटी भी ऐड होता है, और इन सब का इवेंट के अंदर जो एक्टिविटी है उनको अगर लॉजिकल सीक्वेंस में या लॉजिकल ऑर्डर में आप उसको कंबाइन करते हो, अरेंज करते हो, देन द ओवरऑल word or term used for that particular thing is a project. ठीक है. Then network. A network is a diagrammatic representation of the activities in the project. The activities are connected by the arrows moving a forward direction. तो नेटवर्क क्या है? एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का जो हमारे प्रोजेक्ट का है. एंड दिस एक्टिविटीज आर कनेक्टेड बाय एरोज, जिसको हमने बोला है इवेंट्स, सॉरी, एक्टिविटीज. मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो हमेशा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा. ठीक है. सो नेटवर्क इज नथिंग बट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. The next one is path. A path refers to the sequence of activities that complete the project in the specific period of time. There are various paths or routes in which the project can be completed. So path का मतलब क्या है? It refers to a sequence of activities. ठीक है. अगर समझिए आपको फोर व्हीलर परचेस करना है, आप किसी भी आउटलेट में जाते हो, कोई भी फोर व्हीलर व्हीकल के शोरूम में जाते हो, तो फर्स्ट पर्सन टू बी इन योर कॉन्टैक्ट विल बी अ सेल्स पर्सन. ठीक है. वो आपको सेल्स के बारे में बताएगा, गाड़ी के फीचर्स बताएंगे, कॉस्ट बताएंगे, डिस्काउंट्स बताएंगे, ऑफर्स बताएंगे. देन सेकंड, अगर आप एग्री करते हो और अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर लोन लेना है, ऑटोमोबाइल या ऑटो व्हीकल लोन, तो आपके लिए एक पर्टिकुलर लोन डिपार्टमेंट का पर्सन आएगा. नाउ हियर सेल्स पर्सन इज एक्टिविटी वन, से देन लोन डिपार्टमेंट पर्सन ड्यूटी इज एन एक्टिविटी टू. ठीक है. लोन हो गया, अप्रूव हो गया, एंड देन उसके बाद जाता है स्टोर्स में या इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को. अब इन्वेंट्री विल चेक कि ये पर्टिकुलर कार, ये पर्टिकुलर मॉडल अवेलेबल है या नहीं है. ये पर्टिकुलर मॉडल जो हमने रखा है उसका चेसिस चेक करेंगे वेदर इट इज सोल्ड और नॉट. अगर नहीं है तो वी विल असाइन दिस पर्टिकुलर व्हीकल टू XYZ पर्सन जो हमारे शोरूम में परचेस करने आया है. अब यहाँ पे तीन लोग हमारे लिए काम करते हैं. सो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है, तो ये एक पाथ है. ठीक है. सेल्स पर्सन, लोन वाला पर्सन, देन दिस इन्वेंट्री वाला पर्सन, इन तीनों को जब हम लोग मिला के देखते हैं, एक सीक्वेंस कंप्लीट करते हैं, तो वी फॉलो अ पाथ, एक पर्टिकुलर पाथ, एक पर्टिकुलर वे को फॉलो करते हैं. ठीक है. देर आर वेरियस पाथ्स और रूट्स इन विच द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड. तो अलग अलग पाथ है, अलग अलग रूट्स है, जिनके वजह से हमें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मदद मिलती है. Then next is critical path. It is the longest path in terms of a project completion time by which project is completed. The activity on the critical path are called critical activity. The completion of these activities cannot be delayed. ठीक है.
सो बेसिकली क्रिटिकल पाथ वो है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। नाउ इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपको कोई पर्सनल लोन पास करवाना है तो आपका जो सैलरी स्लिप है, आपका जो सैलरी क्राइटेरिया है, अर्निंग क्राइटेरिया है, दैट इज द क्रिटिकल पाथ। आपको 5 लाख का पर्स नॉर्मल लोन चाहिए आपके सैलरी के ऊपर, ठीक है, बट जितना आपने रिसर्च किया आपको 3 लाख मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली इट इज समथिंग विच इज क्रिटिकल फॉर यू, राइट। और ये जो एक्टिविटी है इसको क्रॉस करने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है। और ये क्रिटिकल पाथ आपने पार कर लिया, दैट मीन्स योर प्रोजेक्ट इज रनिंग स्मूथली। Now there is a remark, there are more than one critical path possible for the given network with equal duration of completion time, राइट। सो एक से ज्यादा भी क्रिटिकल पाथ पॉसिबल है, आप फेस कर सकते हो एक पर्टिकुलर गिवन नेटवर्क में एक पर्टिकुलर इक्वल ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन टाइम। नाउ नेक्स्ट वन इज सीक्वेंशियल एक्टिविटी। Two or more activities are sequential in nature if the end of one activity is the start of another. For example, activity Q starts after activity P, राइट। सो ये सीक्वेंशियल एक्टिविटी है। हमारे लिए भी सीक्वेंशियल एक्टिविटी क्या है? टीचर ने, प्रोफेसर्स ने, मैडम्स ने आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद जाके आपको डाउट्स आएंगे या फिर आप डाउट पूछ सकते हो। सो टेकिंग लेक्चर इज अ सीक्वेंशियल एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट कि उसके बाद हम डाउट पूछ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी एक सीक्वेंस है, उसके बाद ही दूसरा सीक्वेंस चालू होगा। सो एक सीक्वेंशियल एक्टिविटी है, चाय बनाना है तो पहले हमें वो पानी लेना पड़ेगा, उसमें चाय पत्ती और शक्कर डालना पड़ेगा, ठीक है। देन सीक्वेंस वन इज पहले वो दोनों चाय पत्ती और शक्कर को उबालो, उसके बाद थोड़ी देर में हम दूध डालेंगे। हम सारा चीज एक साथ डाल के नहीं उबालते, कोई करता होगा, टेस्ट अच्छी होती है, बट इन जनरल द प्रोसेस और एक्टिविटी का जो पाथ है वो इस तरीके से होता है, राइट। सो ये सीक्वेंशियल एक्टिविटी है। देन we have something called, actually we are running out of time, so what we'll do is we will wind up here, and we still have 6 concepts to be covered, ठीक है। So preceding and predecessor activity, succeeding or successor activity, concurrent activities, merge events and burst events, एंड लास्ट इज मर्ज इन बर्स्ट इवेंट। तो इन सारे डेफिनेशंस या मीनिंग्स को हम कल अपने अगले ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर में बात करेंगे। अब आपको ऐसा डाउट होगा कि सर ये थियरी पार्ट हम लोग क्यों देख रहे हैं? बिकॉज ये थियरी पार्ट अगर हमें समझ में आएगा तो हम जो टर्म्स इस्तेमाल करने वाले हैं, जो मेथड्स इस्तेमाल करने वाले हैं, जो एरोज एंड सीक्वेंस इस्तेमाल करने वाले हैं एक्चुअल सॉल्यूशन में, वो करने के लिए हमें इजी जाएगा। अदरवाइज बार बार हमें एक कंसेप्ट को देखना पड़ेगा कि कॉन्करेंट एक्टिविटी क्या है, सीक्वेंशियल एक्टिविटी क्या है, इवेंट का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विथ थियरी, understand their basics and complete the particular chapter smoothly, right? So thank you so much. We'll see you in the another operation research lectures. Till then, take care. Bye bye and have a nice time.